سے آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کی یہ تقریب معروف شاعرہ بینا گوئندی کے جو تازہ مجموعہ ہے وسط احکام، جو کہ ان کے مضامین اور کالج پر مشتمل ہے، اس کی تقریب پذیرائی کے طور پر منعقد کی جا رہی ہے۔ تو تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں سب سے پہلے صاحبہ تقریب معروف شاعرہ اردو شعر کی بات کریں، اردو نثر کی بات کریں، اردو تنقید کی بات کریں، اردو کالمز کی بات کریں، تو آپ کو یہ نام بہت نمایاں محسوس ہوتا ہے۔ آپ اردو سائنس بورڈ میں آپ کی گراں قدر جو خدمات ہیں وہ اردو ادب کا ایک سنہری باب ہیں۔ اشفاق احمد کے صاحب کے ساتھ آپ نے جو جب آغاز تھا میرے نالج کے مطابق اردو سائنس بورڈ کا، تو آپ نے اردو ادب کی ترویج میں جو کردار ادا کیا وہ سراہے جانے کے قابل ہے۔ میری مراد محترمہ بینا گوئندی صاحبہ سے ہے کہ آپ سب کی تالیوں کی گونج میں وہ اسٹیج پر ہیں۔ اس کے بعد ہماری آج کی تقریب کی مہمان خاص معروف سماجی شخصیت منزہ لاکھ صاحبہ جو کہ اسٹیج پر موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی تالیوں سے ان کو خوش آمدید کریں۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان اعزاز معروف ایجوکیشنسٹ ہیں۔ آپ باٹنی ڈپارٹمنٹ میں، جو کہ بینا جی باٹنی کے اسٹوڈنٹ تھے، تو باٹنی ڈپارٹمنٹ میں آپ ان کے کلاس فیلو تھے۔ اس کے بعد بہت سی یونیورسٹیز اور کالجز میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ میری مراد جناب نعیم مسعود صاحب سے ہے، آپ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اب تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دینا چاہوں گا۔ بزم ہدایت گروپ کے صدر ہیں، خوبصورت شاعر ہیں، میری مراد جناب شہزاد شاکر صاحب سے ہے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا وإن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم۔ برسات احترام کو یا بینا کی شعری کتابیں جو انہوں نے جب سے ہم ملے ہیں، ہم اس وقت ملے تھے، جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس سے بھی پہلے بلکہ تو ہماری بڑی پرانی ملاقات ہے، اکٹھا پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد ہماری زندگی جو ہے وہ روانہ ہوئی ہے، اور یہ روانی جو ہے اس میں آج بھی مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ ہم شاید اسی زندگی کے اندر جی رہے ہیں۔ یہاں تک اس کتاب کا تعلق ہے، اس کے تمام مضامین میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے دوستوں کو یہ کتاب چاہے دیر سے بھی ہوتی ہے، انہوں نے چاہے نظر سے نہیں گزری، لیکن میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس کے تمام مضامین پڑھے ہوئے ہیں اور سنے ہیں، اور ایک سے زیادہ مرتبہ سنے ہیں۔ کتاب کے اندر آپ کو بڑی ڈائیورسٹی ہے، ایک طرف اگر حالات حاضرہ کی گفتگو آپ کو ملتی ہے، تو دوسری طرف سائنس کی پیچیدہ جو کائناتوں کا سفر ہے اس کی وسعتیں بھی آپ کے سامنے سے عیاں ہوتی ہیں۔ کہیں سچے سرمست جو ہیں وہ بھی مست ہو کے ناچتے آپ کو اس کتاب میں نظر آئیں گے کہ ایک صوفیانہ پن جو ہے
बीना की तहरीर इतनी पुख्ता है कि ऐसी नहीं है कि आज की बात हो। जब से बीना ने लिखना शुरू किया है, मेरी इल्म में ये बात आई है कि बीना ने लिखी है, उस वक्त से बीना की तहरीर बहुत मजबूत है, बहुत जामिया है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो मैं समझता हूँ, मैं अपने सब दोस्तों से जब पढ़ाता हूँ वहाँ, तो मैं तालिब इल्मों से भी ये बात करता हूँ कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा हथियार जो है वो वर्ड चॉइस है। अगर आपके पास खूबसूरत अल्फाज हैं अपनी बात को बयान करने के लिए और दूसरे की दिलाजारी के बगैर अगर आपका पैगाम जो है वो पहुँच जाता है, इससे बेहतर कोई और चीज़ नहीं है। बीना को बहुत बहुत मुबारकबाद इस किताब के लिए। मैं लंबी बात नहीं करूँगा, लेकिन इकबाल का एक शेर अर्ज करता हूँ तो उन्होंने जवाब शिक्षा में लिखा है, वो एक हिदायत है हम सब के लिए जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं कि हम तो मायल बकरम हैं कोई साइल की नहीं, राह दिखलाएं किसी राह मंजिल की। अगर आप साइल बन के उसके दरबार में जाना चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। आपको बहुत मुबारक, आपके मेहमानों का बहुत शुक्रिया और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात नहीं होती लेकिन आपका मजबूर है कि आपको चीज़ बहुत मैं तो शायद बिल्कुल तैयार नहीं थी क्योंकि मुझसे कहा नहीं किया था, लेकिन बहरहाल क्योंकि बीना हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त है और बीना के साथ जो मोहब्बत का हमारा आलम है ना कुछ लोगों का, इस शायरी में ये कि छलक छलक जाती है हमारी मोहब्बत। और हमारी ये बहुत ही प्यारी दोस्त है, और बस मैं क्या कहूँगा, वो जो भी हमारे किसी अभी कार्यक्रम में कहा कि ये बहुत ही लाइटली और फुल ऑफ एनर्जी, तो हमें भी इससे एनर्जी मिलती है। हमारे दोस्तों की दोस्त हैं और इंतहाई हल्की शख्सियत। और किताब का ये है कि किताब को एक सिटिंग ऑन माई शेल्फ में अभी तक नहीं लिख पाई क्योंकि उसमें बिना एक जगह ये भी हुई है कि हम लोग सभी किताब को अभी देख नहीं पाए हैं। उसकी वजह ये है कि बहुत जल्दी से ये जो तकलीफ है ना, यानी कि उसमें गैप बहुत कम है। अगर 2-3 साल का गैप बोला तो शायद बहुत से लोगों ने किताब को बढ़ गया होगा, लेकिन आपने बिल्कुल इसको बिल्कुल भी देना इस बात को। तो बहरहाल बीना के लिए बहुत सी दुआएं और आई विश यू द बेस्ट। और मैं समझती हूँ कि जो रिव्यूज बीना की किताब से आ रही है इस वक्त बहुत ही शानदार रिव्यूज आ रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि बहुत सी तालियां हो जाए। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत सी दुआएं। बहुत शुक्रिया फरहत। मैं माजूर चाहता हूँ इसके लिए कि हमारे मौजूद मेहमान गिरामी से हमारे दरमियान एक शख्सियत मौजूद थी, लेकिन बस तकरीब की गहमा गहमी में मैं उनको स्टेज पर इन्वाइट नहीं कर सका। मैंने तारुफ भी करवाया उनका। मेरी बात मोहतरमा सोफिया बेदार साहिबा से है, आज की हमारे मेहमान खास हैं। आप स्टेज पर सामने जैसे आपको आसान। तो अब हम स्टेज की जानिब रुख करते हुए इकबाल चावला साहब जी, इकबाल चावला साहब हमारे दरमियान, जैसा कि मैंने पहले बताया, डीन है अपने शोबा के, पंजाब यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है, सीनियर एजुकेशनिस्ट हैं, माहिर तालीम। तो गुफ्तगू करेंगे बीना गोविंदी की शख्सियत के हवाले से आपकी तालीम में। प्लीज़ आपकी जो तालीम है मेरी मुझसे भी हुई किताब का आपने मुझे बहुत पहले दी थी, तो वो घर शिफ्ट हुआ तो फिर वो किताब भी इसकी ज़रूरत हो गई। और परसों से हम आपके पीछे हैं, मेहमान साहब को भी कहा, आपने वो PDF भी मुझे नहीं भेजी, लेकिन ये अच्छा हुआ। उसकी वजह ये कि मुझे तो अदब का पता ही नहीं था ना है। इनसे भी मेरी मुलाकात मुख्तलिफ जगहों पर हुई। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में हूँ, लिटरेचर फेस्टिवल का और हिस्टोरिकल कॉन्फ्रेंसेस थी। तो मैं देखा कि मोहतरमा जैसे हमारे एक साथी ने कहा हर जगह मौजूद है और उन्होंने रौनक लगाई हुई है और लोग उनकी बात सुन रहे हैं और बड़े एहतराम से और उसमें कहते भी उड़ रहे हैं। फिर जब हम
गेस्ट हाउस में आए तो फिर देखा कि शी वाज देयर। तो बातों बातों में मैंने कहा सुहेल फट से बोल दिया आपका क्या लगता है, तो वो तो मेरे बड़े भाई हैं और उनका नाम देख के भाई याद आया कल वो किसी और फंक्शन में थे तो वो वहाँ मौजूद थे और वो उस तकरीर के हुए रवा थे और आज आप यहाँ हुए रवा हैं। तो हमारे एक साथी ने कहा आप बड़ी माँ हैं और अभी मोहतरमा ने कहा आप बड़ी बेटी हैं। अब मेरा ख्याल आप बहुत अजीम शख्स हैं। हम उसे डिपार्टमेंटल में नहीं डालते कि आप जेंडर स्टडीज से हैं, जेंडर है, वो इंसान है और जो इंसान ने सोचा और महसूस किया और ख़ासकर जो हमारे एक साथी ने कहा कि आपका एक्सपोजर, आपका सगोदा से उठना, तालीम हासिल करना, यूनिवर्सिटियों में पढ़ना, फिर उर्दू अदब बोर्ड में आपकी खिदमत, फिर अमेरिका में जाकर आबाद हो जाना, फिर कभी अमेरिका से निकल कर पूरी दुनिया का चक्कर लगाना और फिर वापस आ जाना। अब मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में मुझ जैसे कई लोगों को इल्मी तौर पर सैराब करते हैं। मैं बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ आपसे और गॉड ब्लेस यू सर एहतराम। आई विश के बहुत कामयाब होगी। मैं पढ़ूंगा तो ज़रूर इस पर राय भी दूँगा। इन्होंने जिक्र किया निर्माण का, तो ये तो लफ्ज़ ही हमारे सऊदी आलम के हवाले से शायरों का बड़ा महबूब है। तो निर्माण शख्सियत के एतबार से भी हमारा महबूब है। बड़े बड़े दोस्त हैं, स्कल्पचर हैं, बड़े बेहतरीन चश्मा साज हैं और रक्स में इनकी खिदमात के कदर हैं। लाहौर आर्ट्स काउंसिल की बात करें, कराची आर्ट्स काउंसिल की बात करें तो एक ज़माना इनकी सलाहियतों का मोतरफ है। हम इनके शुक्रगुजार हैं और आज की ज़िंदगी में हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो अब मैं के लिए दावा देना चाहूँगा बीना जी का ये इन्होंने जब यहाँ पर अपना एक उस्ताद के तौर पे, लेक्चर के तौर पे इन्होंने अपनी बात साझा की। ये बॉटनी का जो सब्जेक्ट था उस हवाले से, फिर उर्दू अदब के हवाले से इन्होंने उर्दू साइंस बोर्ड में बहुत अर्सा से उससे अटैच की। उसके बाद एक बड़ा लंबा गैप है पाकिस्तान के हवाले से, अदब के हवाले से तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान में 17 साल इन्होंने अमेरिका में अपनी जो लाइफ, जो 17 साल अपनी ज़िंदगी के गोल्डन पीरियड था वो अमेरिका में हुई वहाँ पर। लेकिन अदब की जो ये रमन थी या जो शमा थी, उन्होंने इसको रोशन रखा और वहाँ पर इस काम को उसी तरह जारी सारी रखा। तो हमारे दरमियान जैसे मुल्ला शहाब थी, अब ये जो दूसरी शख्सियत गुफ्तगू करने आ रही है, इनका ताल्लुक भी अमेरिका से है, ताकि ये लोग हमें बड़ा करीब से बता सकते हैं कि यहाँ पर तो हमने इनका काम देखा, वहाँ पर इन्होंने तकरीबात के हवाले से, अपनी तहकीकात के हवाले से उर्दू अदब की जो शमा है इसे किस तरह से रोशन रखा या मज़ीद फरोग़ किया। तो मैं गुजारिश करता हूँ, राइटर हैं शोभा के एतबार से, मैंने पहले भी बताया, डॉक्टर हैं और शायरा भी हैं। मेरी बात आमना मुटर से है, हमारी मेहमान खास कि वो तशरीफ़ लाए और कीमत नदी के हवाले से गुफ्तगू करें। आपकी तालियों में आमना मुटर एक महीने से मेरे साथ थी और जब बीना से मुलाकात हुई तो मैंने कहा प्लीज़ फॉलो करें, उन्होंने पूछा है तो उन्होंने कहा और मैं इनकी शायरी से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ और मुझे शायरी बहुत अच्छी लगती है कि इट इज़ ये एक आम सोच रखने वाले इंसान की सोच को समझ सकती है और इनकी शायरी एक लिहाज से कॉम्प्लेक्स भी है और बहुत सिंपल और बस दिल को छू जाने वाली है। और मुझे इनकी शायरी सुन के ऐसा लगता है जैसे, और बीना की पर्सनैलिटी भी ऐसी है कि जैसे ना सोती मिट्टी की खुशबू की तरह, जब पहली बारिश के बाद जो एक खुशबू आती है ना, बीना की पर्सनैलिटी भी ऐसी है, इनकी शायरी भी ऐसी है। और अब इनकी नस्ल मैंने पढ़ी, जब इन्होंने मुझे कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये नस्ल भी लगती है, और जब इन्होंने मुझे कहा कि मैंने नस्ली मज़ामीन लिखे हैं तो मैंने मुझे ब्रीफली मैंने ग्लैंस ओवर किया है इसको, तो मुझे इसमें सबसे खूबसूरत बात जो लगी है कि ऐसे ये मज़ामीन आप पढ़ें तो ऐसा लगता है कि आप शायरी पढ़ें। अल्फाज जो है वो मोतियों की तरह खोए हुए, मगर कोई बहुत मुश्किल अल्फाज नहीं, हर शख्स भी पढ़ सकता है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है। और दूसरे की बात है कि मेरा ताल्लुक भी साइंस है और बीना का ताल्लुक भी साइंस है, तो मुझे जो साइंस के लोग लिटरेचर में आते हैं ऑब्वियसली वो मुझे बहुत इंट्रीग करते हैं। और उसमें
इनकी राइटिंग्स की बहुत बड़ी बात है कि ये एक इधर इन्हीं मसला डायग्राम में जो मज़ामीन है कि एक तरफ ये लफ्ज़ों को ब्लैक होल से जोड़ देती है, जबकि आप सोचते हैं कि लिटरेचर का फिजिक्स से क्या मतलब है, मगर वो इतनी खूबी से उसको आपको पता ही नहीं चलता, आप मजमून खत्म कर लेते हैं, आप कहते हैं कि वाह कितनी अमेजिंग बात है। फिजिक्स के इतने कॉम्प्लेक्स एक उसको कॉन्सेप्ट को लिटरेचर में डाल, और दूसरी जानिब ये एक ये जो आप मज़ामीन हैं आप इनको एक तरह से समझें, मुझे तो ये लगा जैसे एक जर्नल है जो अपनी डायरी लिख रही हैं और अपने ख़यालात का इज़हार कर रही हैं, मगर उसके साथ इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं जिनको ये जोड़ रही हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं उनके मसाइल कि हम यहाँ से ख्वाब लेके कुछ शख्स यहाँ से ख्वाब लेके जाता है और उसके बाद जब उसके ख्वाब पूरे होने लगते हैं तो वो इस वजह से चला जाता है। फिर ये एक बहुत बड़ा मसला है या एक ख्याल आता है, लोग इस बारे में सोचते हैं कि अगर वतन से दूर आपकी मौत होगी तो आप कहाँ दफन होंगे, और वतन आपका कौन सा है। ये सारे जो है ना मज़ामीन ये बहुत ही एक लिहाज से बहुत सिंपल है और दूसरी लिहाज से बहुत कॉम्प्लेक्स सोच, डीप फिलॉसफी को, सचल से मस्त के बारे में और दहशत गर्दी के बारे में, और इट्स मेरे नज़र में ये बहुत ही एक यूनिक मज़ामीन का मजमूआ है। और मुझे जो बहुत ही इसमें बात मेरे दिल को टच की, मैं वहाँ से इनकी वो नज़म सेंड करूँगी, आप ही की नज़र है जो इस ये मजमून का नाम है सफ़र दर सफ़र, और ये पेशावर में होने वाले जो खुदकश हमला हुआ था, इस नज़म का उन्होंने खुदकश से बच्चे का सवाल। खुदकश से मेरा एक सवाल है, मैंने सुना था तुम भी किसी के बच्चे हो, जहन भी अच्छा है और दिल के भी अच्छे हो, मुझे मारने और खुद मरने से पहले एक मर्तबा मुझे मिल गई, मैं तुम्हें हराने के बेशुमार सुखन सिखा देता, खुद भी जी लेता और तुम्हें भी बचा देता। ये आने और जाने के खेल के दरमियान सांसों की नज़म जो हम लिखते हैं, इस तस्वीर में जो रंग भरते हैं वो ज़िंदगी है। तुमने तो कुएं पर कैनवस पर सारी स्याही उड़ेल दी है और दबाव भी अपने सर में पटक दी है। काश तुम इस स्याही से नजर सकते और जिंदगी 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 के मदार से बाहर नहीं ना निकलते, यकीन मानो मजदूर भी जिंदा है। बहुत खूब आमना मुखर साहब हमारे मशहूर हैं कि आप में तशरीफ आई। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ जिस शख्सियत से मैंने पहले इनका तारुफ बताया, एजुकेशनिस्ट हैं माहिर रानी, अब उसके साथ साथ आप पहले एडिटोरियल बोर्ड से वाबस्ता थे मोबाइल के अरसा दराज आपने अपनी खिदमत वहाँ पर सरंजाम दी, आजकल आप वाबस्ता हैं रोज़नामा चैनल से, तो आप कॉलम निगार हैं, बड़े सीनियर कॉलम निगार हैं। मेरी मुराद प्रोफेसर नईम मसूद साहब से है कि वो तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें आपकी तारीफ में। प्रोफेसर क्योंकि रिश्तों की हो रही थी, चुनाचे मेरे दिल में भी जो बात आई वो मैं कह दूँ। वो आज मामला कुछ ऐसा है कि शोएब अजीज मेरे सामने बैठे हुए थे और ज़्यादा लोग सुनाने वाले हैं और उन्हें सुनना पड़ रहा है, मुझे तरस आ रहा है। बिना लड़की थी और मेरी सीनियर यूनिवर्सिटी, दो लड़कियों को सीनियर नहीं कहना चाहिए, लेकिन बात तो सच है। जहां बीना होती है ना वो अंशमन अराई कुछ ग्लोबल कुछ कॉमन बन जाती है, दैट्स नॉट नेचुरल। बीना पंजाब यूनिवर्सिटी से बिछड़ती है, फिर हामिद की सम्मेलन में मैं कहा
تو بڑے سالوں کے بعد ایک فیسٹیول میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں ان سے ملاقات ہوتی ہے. تو جس بینا کو میں جانتا ہوں, جو میں نے عرض کیا یا نہیں کیا یا شاید نہ کر پاؤں, ہمارے ہاں فیشن یہ ہے کہ ہم رشتے بہت بناتے, نبھانے میں بڑے قریب سے. لیکن اس بی بی نے رشتے نبھانے میں جو پی ایچ ڈی, وہ ہمارے دوستوں میں مجھے تو نظر نہیں آ رہا. بینا چیزوں کو مائکروسکوپ سے دیکھنے کی اس لیے آتی ہے کہ باٹنسٹ ہے. جب ہماری سینئر تھی تو ہمارا بایولوجیکل سائنسز کا ایک ورڈ ہوتا ہے ایکو سسٹم. آپ لوگ تو ذرا سسٹم سے پیار کرتے ہیں, ہم بلکہ سب ایکو سسٹم سے پیار کرتے ہیں. The system which is established between living and non-living things. یعنی ایسا سسٹم جس میں we have to consider living and non-living, جاندار اور بے جان. وہ الگ بات ہے کہ ہم جانداروں میں بھی بہت سے بے جان ہوتے ہیں, لیکن بینا کی جو چشمے بینا تھے, یہ اس باٹنی ڈپارٹمنٹ کے, پھولوں کے پتوں کے ڈپارٹمنٹ میں, کیمکس کرولا کے ڈپارٹمنٹ میں ایک ایکو سسٹم میں رہے. وہی جو رشتے نبھانے والی بات ہوتی ہے نا, تو وہ بندہ سسٹم کا نہیں ہوتا, ایکو سسٹم کا ہوتا. وہ زندہ گران لاہور کا نہیں ہوتا, وہ شہینوں کے شہر کا بھی ہوتا ہے, وہ امریکہ والوں کا بھی ہوتا ہے, وہ پاکستانیوں کا بھی ہوتا ہے, وہ وفاؤں والوں کا بھی ہوتا ہے اور بے وفاؤں کا بھی ہوتا ہے. تو اس کو عادت تھی بے جان چیزوں سے باتیں کریں. ہم جانداروں کو لفٹ کر کے آتے تھے, لیکن اس کے باوجود ہم نے وہ ابھی جس طرح میں نے بوٹی لگائی نا شعراء عزیز کے سامنے, ان کی کتاب کھولی کہ ہو سکتا ہے وہ الگ بات ہے نا. وہ کہتے ہیں اے قاسم اسے خط کیسے لکھوں, ہاتھ میرے تر آتے ہیں, خالی کاغذ دے دینا پیغام زبانی کا ہے. تو ان حالات میں میں ایک صفحہ کھولتا ہوں, میں نے کتاب مجھے آج ملی, یہ بھی ان کی مہربانی ہے, بساط احترام. ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مجھے کتاب نہ دی جائے. عرض یہ ہے کہ میں بولتا ہوں تو من کے اندر کی عنوان سے لکھا کیا ہے, میں وہ بات کرتا ہوں, لیکن بنا ایک بڑی مشکل میں ڈال دیا. اب ذاتوں کو کہاں پتہ ہے کہ کالم اور مضمون میں کیا فرق ہوتا ہے. تو کوئی پلیز کلیہ بھی لکھ دینا کہ ہم طالب علموں کو پتہ چل جائے کہ اس میں سے ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ یہ کالم ہے اور یہ مضمون ہے. ہم مضمونوں کو کالم سمجھ کے اور کالموں کو مضمون سمجھ کے پڑھ جاتے ہیں. ہم تو نہیں, جو اگلی نسل ہے وہ شاید اسی طرح کرتی ہے, اور اسے یہ بتانے کی. اور آپ اساتذہ بھی پلیز اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا کہ میری درخواست ہے. تو بینا لکھتی ہے کہ صوفی کا حلیہ کوئی خاص نہیں ہوتا. وہ من اپنا پرانا کاپی ہے نا باٹنسٹ والا, تو میں پڑھ گیا کہ صوفی کا حلیہ خاص نہیں ہوتا. تو ابھی محترمہ بھٹر صاحبہ فرما رہی تھی کہ وہ سائنس کی استاد ہیں یا سائنٹسٹ ہیں, تو جس طرح میں سائنس کا طالب علم ہوں, تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ کم سائنٹسٹ ہوتے ہیں جو ادب میں آتے ہیں, اور جو آتے ہیں وہ واقعی با ادب ہوتے ہیں. انہیں خود کش کا اور خود کش کا پتہ ہوتا ہے. اس لیے اس سے زیادہ کچھ کہوں گا تو آپ بور ہو گے. آج کے لیے بس اتنا ہی, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ, اینڈ بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اسٹیج پر آگے بڑھتے جاتے ہیں تو گفتگو کا جو تحقیق ہوتی جا رہی ہے. اس کے بعد میں جس شخصیت کو مدعو کر رہا ہوں, اس دوران ایک اور مہمان کو استعمال کہنا چاہوں گا. ہماری پیاری شاعرہ ہمارے درمیان تشریف لائی ہیں, محترمہ محمد سلطانہ بٹ, ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب ان سے میرا پہلا تعارف اس شخصیت کو بھی میں اجتماع بنانے جا رہا ہوں.
वो बीना साहिबा के जरिए ही हुआ। उनके घर की तकरीबात में ये उसका लाजमी हिस्सा होती हैं। और जैसा कि बहुत से मुफस्सिरीन यहाँ पर कह रहे थे कि बाज़ लोगों की शख्सियत में ऐसा जादू होता है कि उनकी एक जो मुलाकात है वो आपको अपने साहब में कर देती है। आप उनकी शख्सियत से, उनकी गुफ्तगू से इस कदर मुतासर होते हैं कि बाद में दोबारा मिलने को आपका दिल भी चाहता है और आप उस मौके की तलाश में भी होते हैं। तो मेरा दिल भी चाह रहा था, मौके की तलाश की थी, तो वो मौका आज के तकरीबन एक बड़े कदावर सियासी घराने से आपका ताल्लुक है, बीना के करीबी साथियों में है, मारूफ समाजी शख्सियत है। मेरी मुराद मोहतरमा मुनज़्ज़र लक साहिबा से है जो तशरीफ लाए और बीना की शख्सियत के हवाले से मोहतरमा मुनज़्ज़र लक आपकी तालीम में यहाँ पे बड़ा मुश्किल लग रहा है। सबसे पहले तो बीना जी का बहुत सारा शुक्रिया कि आज उनके तवज्जुह से इतने प्यारे, इतने खूबसूरत लोगों से मुलाकात हुई और उसी बात करते और आप ये नहीं जानिए कि समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आप लोगों के सामने, इन सब लोगों के सामने मुझे अपनी बात करना इस तरह लग रहा है जैसे PhD के सामने एक प्राइमरी का स्टूडेंट उसको पर्चा मुझे साथ ही दे दिया और गाँव के आप, लेकिन इनके बिना है तो मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ा इनके बारे में अपने ताज़ शेयर करूँ। बीना जी से मेरी मुलाकात तकरीबन एक बहुत 20 बरस का ऐसा हो गया है। बीना और मैं हम एक दूसरे से वाकिफ टाइम जानते हैं। बीना का ताल्लुक बीना सपोदा से है, मेरा ताल्लुक भी सपोदा से है और ये भी हम दोनों का जो कंबाइन रिश्ता है कि हम एक ही जिला सपोदा से हम ताल्लुक रखते हैं। बीना के बारे में जो सबसे पहले आप लोगों के साथ जो अपने एक्सपीरियंस के बारे में वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, क्योंकि मैं कुछ एडमिशन से जुड़ी हूँ। मैं बीना की शायरी, बीना का लिटरेचर, बीना का वो सब कुछ वो चीज़ें तो आप लोगों का डिपार्टमेंट है वो आप शेयर करेंगे। अब आप बताएंगे बेहतर नहीं। मैं उनकी शख्सियत के बारे में जो भी मैंने देखा है, उनको जो भी मैंने उनको पाया है वो आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करना। हमारा जिस जिला सपोदा एक फ्यूडल लॉर्ड्स का इलाका है, आज भी है, लेकिन आज से 20-25-30 साल पहले उन्होंने अपना सफर शुरू किया होगा। उस वक्त तो ये टोटली एक मैन ओरिएंटेड फ्यूडल लॉर्ड्स का इलाका है। उसमें एक औरत का सपोदा जैसे उस सिस्टम में से उठना जहाँ पे एक औरत को वैसे भी इतना ज़्यादा उठने की उसको क्या कहना चाहिए कि उसकी मदद क्या करती है, उसके पीछे से उसकी लेग पुलिंग भी होती है और वहाँ पे जो मर्द हजरात है उनका बोझ जो है वो बहुत ज़्यादा सियासत में वो हर किस्म का उस सारे सिस्टम में बीना सपोदा जैसे छोटे शहर से उस वक्त उठी, जिस वक्त के औरतों का इस अदब के इस शायरी में, अदब में, राइटिंग में इसी तरह सपोदा जैसे जिला में बहुत कम रोल था। और वो वहाँ से ऐसी उठी कि फिर उन्होंने पीछे होते थे। और आज इस वक्त मैं बड़े फख्र के साथ ये कह सकती हूँ कि हमारा सपोदा यहाँ पे अपने किन्नों की वजह से मशहूर है। वह हमारे किन्नों के साथ सपोदा हमारे बीना जी के बराबर हम लोग बीना जी का नाम बराबर फख्र के साथ लेते हैं कि जहाँ पे हमारे किन्नों है वहाँ के साथ हमारी बीना जी ने भी हमारा नाम उसकी तरह रखा। और दूसरा मुख्तसर बीना जी के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि एज ए इंसान आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने किसी भी इंसान को इतना ज़्यादा सेल्फ नहीं पाया। मैंने हमेशा उनमें ये एक चीज़ देखी है कि कभी भी उन्होंने ना दौलत के पीछे, ना शोहरत के पीछे, ना उन्होंने आजकल ये जो मजनून TRPs और ये सारा कुछ चल रहा है और ये सारी चीज़ें इनके पीछे बीना ने कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। बीना ने सिर्फ और सिर्फ अपने काम के ऊपर तवज्जो दी है। और आप यकीन करें, मैं आपको यकीन से बल्कि बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने बीना को मिलकर अभी ये पिछले दो हफ्तों में 3 हफ्तों में 2-3 दफ़ा हुआ है कि मैंने बीना को कहा है कि बीना यही यहाँ पे हम हैं, यहाँ पे पास एक
हाउस है, फिर एक इस्लामाबाद में है, वहाँ पे अवार्ड्स की तकरीब है, मैं बीना अवार्ड लेने हैं चलो। तो शी रिफ्यूज, बल्कि रिफ्यूज तो इस तरह से किया कि बीना के चेहरे पे थोड़ी सी नागवारी के असरात थे और बीना ने कहा कि नहीं मैं ये लेंगी। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो ये अवार्ड करते हैं, उन लोगों में से जिनका काम है। अंदर से भी तालियां बजनी चाहिए, बाहर से अगर बज रही हैं तो। और इंतहाई अपने आप से बेना और अपने अंदर एक छोटा सा सुखी मैंने जो और अल्लाह ताला ये जो काम हमने शुरू किया है और जिस तरीके से वो इसमें चल रही है और बगैर इसके कि उनको कोई भी ये अवार्ड और इस किस्म की जो सारी चीज़ें आजकल लोग उनसे बेनाज होकर अपना ये काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत दे। और एक सबसे लास्ट चीज़ कि जो चीज़ मैंने बीना में बहुत ज़्यादा देखी है वो ये है कि वो दोस्ती निभाती है, वो दोस्ती करके फिर पीछे नहीं देखती है कि वो किसके साथ उन्होंने दोस्ती की है और वो क्या है और वो क्या नहीं। वो एक दफ़ा दोस्ती कर ली तो बस फिर वो उसके साथ आंखें बंद करके उसको दिखाएंगे और वो आदमी वो लोग हमेशा भी उनको अपने साथ चाहता है। अब तकरीबन इंतजामी बना रहे थे हमारी आज की तकरीब के। मैं दावत देना चाहूँगा, मेरा इस शख्सियत से पहला ताल्लुक़ पंजाब आर्ट्स काउंसिल उसका हवाला बना। हम यहाँ पर कोई 10-11 साल पहले, बल्कि हम क्या सलीम अख्तर साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है हमारे मेहमानों में, इन्होंने अपने मैगज़ीन अदबियातिया के प्लेटफॉर्म से एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। यही अलहमरा में 2 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें उस हवाले से मेरा पंजाब आर्ट्स काउंसिल जाना हुआ इनके साथ। पहली तो कुदरत की मेहरबानी ये हुई कि अभी के लाइट चली गई हो, उसमें जितनी साबित कदमी से वो लगे हुए हैं उतनी ही साबित कदमी से हम भी शेर की खिदमत में हैं। राम की महफिल और शेर की गुफ्तगू दोनों ही सिरात मुस्तकीम पर चल रहे हैं। आज की तकरीब की साहिब सदारत शख्सियत मोहतरमा सलमा अवान साहिबा नहायत मुअज़्ज़ज़, नहायत खूबसूरत इंसान और आज की साहिबा शान मोहतरमा बीना गोविंदी साहिबा, तमाम मेहमानान एज़ाज़, मेहमानान ख़ुसूसी, बेहद मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप सबकी इजाज़त से बीना के हवाले से चंद बातें कहना चाहती हूँ। उससे कबल मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने तो वाकई किताब देखी और उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी है। अगर मैं ये समझती हूँ कि जिन लोगों ने ना भी पढ़ी हो उन्हें ये आके ऐलान नहीं करना चाहिए। उससे ये होता है, मुझे बड़े सगीर के बहुत बड़े अदाकार अजीब कुमार की बात याद आती है कि वो कहते हैं कि जब आप किसी का नाम भूल जाए तो उसे किसी गलत नाम से मत पुकारें। इस तरह से आप दो अपनी नलायकियाँ साबित कर जाते हैं। एक तो ये कि आप मद्दे मुकाबिल का नाम भूल गए, दूसरी गलती ये कि आप जिसके नाम से मौसूल कर रहे हैं उसे भी भूल गए। तो बहुत सी बातें जो हैं वो अदब का तकाज़ा होता है और जो पसीराई की तकलीफ होती है इसमें बड़ी नाज़ुक मिजाज अदीबों को उनको उसी तरह से देखना चाहिए। और बीना तो खुद एक किताब है, और बल्कि मैं अपना आगाज़ एक शेर से करना चाहूँगी कि सब दुखों को किताब करना है, तेरे नाम इंतसाब करना। और बीना का जो चेहरा है वो एक खुली किताब है, उसके चेहरे पे हर तहरीर आ जाती है। वो जो सोचती है, वो जो महसूस करती है, उसकी मुस्कुराहट में छुपा हुआ है या उसकी आंखों की नमी में दिखाई दे जाता है। बीना ने ये किताब तो बसंत एहतराम अब लिखी, इससे कबल का उनका जो अदबी सफ़र है और उसके साथ जो बहुत सी गैर मंतकी बातें जो है बाज़ मरतबा अदब में हो जाती हैं, इनके साइंटिस्ट होने की वजह से इनका बड़ा मजबूत और बड़ा ऑथेंटिक स्टाइल है लिखने का। और खुशी की बात यह है कि उसमें शगुफ्तगी है और वो शगुफ्ता तहरीर ऐसी होती है
جو خود کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھو آغاز سے لے کر انجام تک، اور آپ دھیان کی انگلی پکڑ کے شروع کرتے ہیں اور آخر تک پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بینا گوندی کے حوالے سے میں ابتدا میں جو میرا ان کے بارے میں تاثر تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایک پروگریسو باپ کی بیٹی ہے، ایک بہت ماڈریٹ اور پروگریسو بھائی کی بہن ہے، اور ان کا جو گھرانہ ہے وہاں پہ سوچ کو قدرت نہیں ہے، کیونکہ بینا کی شخصیت میں نظر بھی آتا ہے کہ بینا ایک بہت باشعور اور بہت اوپن مائنڈڈ خاتون ہے، یہ چیزوں میں قید ہو کر نہیں رہتی، اور ایک معصومیت کا پہلو بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ مجھے ان کی تربیت، ان کے انداز اور ان کے علمی ادبی گھرانے اور باشعور گھرانے کا فرد ہونے کی حیثیت سے ان کا پہلے سے احترام تھا، لیکن ادب کی جو ادب کا کاروبار کرتے ہیں وہاں بھی کبھی کبھی جو کچھ دوستی کے چمن میں کچھ خوشا چینیاں بھی لوگ کر جاتے ہیں۔ بڑی ہی پیاری دوست ہیں، کبھی شکوہ نہیں کیا، لیکن کسی بات سے ایک شکوہ جھلک گیا تو میں نے پھر بینا کو میں نے سوچا کہ میں ضرور آؤں گی اور میں ضرور بینا کے حوالے سے بات کروں گی، اور ایک شعر آپ کو وہ آپ کے نام کروں گی۔ میری والدہ اور والد دونوں مرے کالج میں پڑھتے تھے، دونوں کلاس فیلو تھے، تو شادی سے قبل میرے پاپا نے امی کو دیکھ کے ایک شعر پڑھا تھا اور وہ میں آپ کے لیے پڑھتی ہوں۔ خلوص سے دل سے تیرا احترام کرتی ہوں، اسٹیج پر سے تجھے میں سلام کرتی ہوں۔ پاپا نے کہا تھا اسٹیج پر سے تجھے میں سلام کرتا ہوں۔ تو بینا مجھے بہت عزیز ہے، اور ان کی جو تحریر ہے پھولوں کی شگفتگی جیسی بہت خوبصورت لکھتی ہیں، اور جب یہ کرونا کے دن تھے تو جو تخلیقی وفور ہوتا ہے وہ بندے کو دم نہیں لینے دیتا، اس میں یہ کیمرے کے آگے جو ہے اپنی تخلیقی گفتگو کو اسی طرح سے فلم بند کرتی رہی، اور ہم سب لوگ ان بڑے پابند دنوں کے اندر ان کی خوبصورت آواز میں خوبصورت گفتگو سنتے رہے۔ میری طرح یہ بھی براڈ کاسٹر رہی ہے، تو ایک جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ ان کی گفتگو میں ہمیشہ نظر آتی تھی۔ ایک واقعے کا میں ذکر کرنا چاہوں گی جو میں نے باقاعدہ نوٹس کیا بینا کو، کہ یہاں پہ ہال 3 میں اردو کانفرنس ہو رہی تھی، یادیں اور باتیں، شاید عطاءاللہ قاسمی صاحب نے وہ کانفرنس کروائی تھی، اس میں خواتین کا ایک سیشن تھا۔ وہاں پہ اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی تھیں نور الہدا شاہ صاحبہ اور بانو قدسیہ صاحبہ اور 3-4 اور جو بہت زیادہ مشرقی نسوانی ادب اور اس حوالے سے اور نسوانی ادبی اور خواتین کے الگ ڈبے کی وہاں گفتگو ہو رہی تھی۔ وہاں پہ کچھ خواتین نے سوال کیا کہ تو انہوں نے بانو قدسیہ صاحبہ سے یہ کہا کہ ہمارے شوہر بڑے ہمیں تنگ کرتے ہیں، اور ایک نے تو کہا میرا شوہر مجھے پیٹتا بھی ہے، تو کیا پھر بھی مجھے اس کی اطاعت کرنی چاہیے؟ تو بانو قدسیہ نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ تم نے اس کی برائی کر رہی ہو تم ہال کے اندر، اور تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں ہر حال میں صبر کرنا چاہیے، اور ہر حال میں اشفاق صاحب کی تعریفیں وہ کرنے لگے۔ میرے دل میں بڑی اس لڑکی کے لیے کھلبلی مچی کہ میں بولوں، میں بات کروں کہ آپ کا تجربہ اگر شادی کے حوالے سے اچھا ہے تو جن کا اچھا نہیں ہوتا ان کو کہنے کا حق ہے۔ ابھی میں سوچ رہی تھی کہ مجھے پیچھے رو سے آواز آئی، بڑی خوبصورت کھنکھناتی آواز بینا کی آئی، اور بینا نے فل احتجاج کیا۔ بینا نے کہا کہ آپ یہ خیالات جو ہیں آپ وہاں تک رکھیں جن کی زندگیاں اچھی ہیں، اور سب کی جو جن کے ساتھ ستم ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، وہ کیوں نہ آواز اٹھائیں۔ میرے دل میں پہلے یہ تعصب کا بن گیا کہ یہ اپنے قبیلے سے ہیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ایک امپرووڈ اپروچ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مرد بن جائیں، ہمیں عورتیں ہی رہنا ہے، باوقار عورتیں رہنا ہے، اور اس کے ساتھ اپنی آواز بلند کرنی ہے۔ میں نے پھر بانو قدسیہ صاحبہ سے کہا، میں نے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کرے کہ ہر ایک کو اشفاق احمد جیسا شوہر ملے، میں نے کہا نہیں یہ کوئی ضروری نہیں، بہت سو کو نہیں بھی چاہیے ہوتا ہے ایسا شوہر، اور آپ یہ دعا کیوں دے رہے ہیں؟ سب کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ اچھا میں نے اکثر عورتوں کو دیکھا ان کا شوہر اگر کچھ اچھا ہے دوسروں کو دعا دے رہی ہوتی ہے کہ اللہ سب کا ایسا شوہر ملے، ورنہ شوہر دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ کیوں ملے ایسا۔
शोभन या हमें नहीं पसंद इस तरह का। तो बहुत एक जो राइटर को जिस तरह होना चाहिए अपनी बात कहने वाला, उसमें ये सारी हमारी फ्रेंड्स जो हैं, फरद जाहिद है, फरद परवीन बैठी हुई हैं, मैं मुनव्वर बैठी हैं, हम सारी तकरीबन एक तरह सोचते हैं। उसी की वजह है कि मैंने बीना से कहा कि तुमने मुझे फलां जगह पे नहीं बुलाया, हामिद साहब से तुम्हारी शिकायत करूँगी। तो बीना की इतनी अच्छी माशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ये शौहर और बीवी के रिश्ते वाली नहीं, दोस्ती वाली इनकी है, ये क्लास फेलो थे। तो कहने लगी तुम जरूर लगाना, तुम्हें कसम है, मैंने लगाई भी शिकायत। ऐसे खिलखिलाते हुए दोस्तों का होना एक नेमत है। वक्त के साथ साथ खुला कि हम कुछ मफरूज़ों पे चलते रहते हैं। जैसे हमें एक मफरूज़ा है कि बहुत पुरानी दोस्तियाँ जो हैं उनको निभाते चले जाना चाहिए किसी पुरानी दवाई की तरह। तो मैं अब ये आगे समझती हूँ कि नहीं, बंदे को दोस्तों में तब्दीली करनी चाहिए, सिलेक्शन करते रहना चाहिए, और जहाँ अच्छे दोस्त मिलें अपनाने चाहिए, और जहाँ पे दोस्ती में तकलीफ हो, ज़ख्म हो, वहाँ से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, क्योंकि बाकी मादाओं में हमें खुश रहना चाहिए। यही हमारी तो है। और मैं जाते जाते अदील बल्कि को जरूर दाद देना चाहूँगी कि बाहर राग रंग की महफिल थी और उन्होंने अदब को तरजीह दी, जबकि उनके हाथ पाँव की जुम्बिश बता रही थी, तो काफ़ी तकलीफ और जैसे कोई गलत तलफ़ुज़ पढ़ा होता है, जैसे कोई बेवजह शेर पढ़ा होता है तो हमारा दिल कर रहा होता है कि हम आके बात करें, उसी तरह उसका दिल कर रहा था कि मैं बाहर जाके कोई इंतज़ाम सीखे करूँ। तो आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया बीना, बहुत मुबारक, आप बहुत खूबसूरत लिखती हैं, बहुत खूबसूरत इंसान हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे मौजूद मेहमान वो किसी काम के सिलसिला में शायद उठकर बाहर चले गए। इसके बीना जोधी साहबा का हुक्म है कि उन्हें पहले बस 2 लोग स्टेज पर बाकी हैं, तो उनका हुक्म है कि उन्हें दावत दी जाए डाइस के ऊपर। जो हमारे PTV है जो उसकी दर्शा रवायात हैं, अच्छा उन्होंने बीना जी हाथ के इशारे से कह रहे कि वो बात नहीं करना चाहते। तो अब मैं गुजारिश करूँगा हमारी सीनियर मोस्ट, मैं उन्हें प्यार से हमेशा आपा कहता हूँ और वो मुस्कुरा के उसका जवाब भी देती हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ ये लफ्ज़ मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी को खुश करने के लिए कहता हूँ, ये मेरे दिल की आवाज़ है। ये जिस किताब की हम आज तकरीब कर रहे हैं जिसको हम वसअत एहतराम कहते हैं, तो एहतराम मैं समझता हूँ कि रिश्तों में जो अगर जिस रिश्ते में एहतराम का पहलू मौजूद नहीं है वो रिश्ता ही नहीं है बेसिकली। तो ये मेरी प्यारी आपा हैं, ये हमारी तरह शोबा तालीम से लॉ और गैरिजन के नाम से जो एक सिलसिला है स्कूल्स और कॉलेजेस का, उसकी हेड हैं। और जहाँ तक शोबा तालीम की बात चली तो मैं एक और मेरे ऊपर कर्ज है, मैं भूल ना जाऊँ दोबारा, मैं खुद भी चूँकि शोबा तालीम से मेरा जो ताल्लुक है सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वाफड ऑन कैंपस 3 साल से मैं उसको रन कर रहा हूँ। तो आज मेरे सीनियर्स यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, तो हमें सामईन हमारे लिए बड़े मुहतरम होते हैं, हमें उनकी ज़रूरत भी होती है। और ख़ास तौर पर आपकी पुष्ट पर जब आपके सीनियर्स इस तरह आके खड़े हो जाए तो आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की बुनियाद रखने वाले फाउंडर मेंबर जो आजकल सुपीरियर कॉलेज टाउनशिप कैंपस के जो प्रिंसिपल हैं मेरे बड़े भाई जनाब हाफिज़ मोहम्मद नवाज साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ तशरीफ लाए। उनके साथ तशरीफ फरमा है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, इनकी रफ़ाकत मुझे मुयसर है, मेरी खुशकिस्मती है। आप प्रिंसिपल हैं सुपीरियर कॉलेज राइविंग कैंपस के जनाब अकील अहमद चौधरी साहब, हम आपके दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने हमें अपना कीमती वक्त दिया और इस तकरीब को रौनक बख्शी। तो मैं आपा की बात कर रहा था तो बुलाऊंगा अपनी प्यारी आपा को जो कि हमारे सफ़रनामे की सुनहरी रिवायत और सुनहरा बात है। मोहतरमा सलमा आवान, आपकी भरपूर तारीफ। शाहिद और आप सब लोगों की मोहब्बत है, मेरी एक सरमाया होता है अमेरिका के, उसको कितनी मोहब्बत है। बिना गांधी के शख्सियत के ऊपर सदीकी साहब ने और सोफिया बेदार ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। उनकी
मैं यही कहना चाहूँगी कि हंसती खिलखिलाती कह के बसेती बीना गोदी जो है, ये उसकी शख्सियत का एक रुख और एक दूसरा रुख की ये बड़ी जियाली भी है। वो वाक़या मैं थोड़ा सा आपको बाद में बताऊँगी। किताब को मैंने पढ़ा है और इसके मज़ामीन के ऊपर मेरा ख्याल है कि मैं अपने मुल्क के बहुत बड़े नामवर तनकीदनिगार अदीब हामिद शाहिद की तहरीर के चंद लाइनें आपको बताती हूँ। और मेरा ख्याल है कि जब मैंने एनालिसिस किया कि मैंने इन मज़ामीन को इनके कॉलम्स को किस नज़र से देखा, तो मुझे हामिद शाहिद की एक लाइन अपने उन जज्बात की तर्जुमानी करती हुई नज़र आई। तो मैं सिर्फ उनकी ये लाइनें चार पढ़ती हूँ जिसमें उन्होंने निचोड़ भी दिया है इनकी इस तहरीर। आप सुन लीजिए। बीना की शख्सियत की तरह उसकी फिक्र भी रोशन है, उसकी सोच के पीछे मुताले का तलब हो और जिंदगी का गहरा मुशाहिदा बोलता है। उसकी फिक्र में ताजगी और फराखी है। बीना के मज़ामीन पढ़ते हुए हम महसूस करते हैं कि कहीं साइंसी हवाले आ रहे हैं और कहीं जदीद तफिक्र के पहलू का पहलू मजहबी फिक्रियात। इन मज़ामीन में सियासत भी मौजूद हुई है और समाजी करवटें भी। कहीं तालीम और ज़बान पर बात हुई है और कहीं दीगर फ़नून और उनसे वाबस्ता लोग भी। कहीं कोरोना की वबा का शिकार करने वाले वतन हुए हैं और कभी अपने फन के आसमान का चमकता हुआ सितारा रहने वाले। समाजी बेहसी की वबा के सबब तारीखियों में ढह जाने वाले इतनी मुतनव्वो मौज़ूआत पर दस्तरस के साथ बात कहने का सलीका भी है। ये तहरीरें सपाट नहीं है। बीना गोंदी ने इनमें अपने असलूब की कुछ ऐसी छप दिखाई है कि आप पढ़ना शुरू करें तो खुद को आखिर तक पढ़ने पर मजबूर करती बातें, सफरनामा, दूसरे मुल्कों और माशरे की बातें, तकरीर में शिरकत का आवाज़, किसी मुलाकात का हवाला, कहीं कहानी का सा अंदाज, कहीं नज़्म, कहीं महज अखबारी वाक़या। इन्हीं से उसने रंग के रंग तहरीर के ताने खूब लिए और वो भी यूँ कि हर बार जिंदगी के भेद खुलते चले जाते हैं। इससे बड़ी बात बीना के वक्त के ऊपर नहीं की जा सकती। दूसरी बात है कि बीना की दलेरी और दीदारी का एक बड़ा पुरलफ सा वाक़या सुन लीजिए। ये वाक़या मीर मोहम्मद बशीर ने मुझे सुनाया था कि ये अपना बिजनेस जब चलाते थे तो इनकी एक शॉप थी ज्वेलरी की और उस शॉप पे एक दफ़ा ये खड़ी थी और दो तीन ब्लैक बॉटल अच्छी टाइप के आई और उन्होंने बड़े तरीके के साथ में कुछ ज्वेलरी जो है वो छुपा ली। इन्हें पता चल गया और जैसे ही इन्होंने कुछ एक्शन लेने की कोशिश की तो वो भाग गए और बीना उनके पीछे भागी अकेली और इस सूरत के साथ भागी और उनको आखिर जाकर पकड़ लिया। और मतलब यानी ना आप हबशी ख़वातीन को खुद अंदाज़ा उनकी इमेजिनेशन करके क्योंकि उनके काट बड़े और वो इस तरह की औरतें होंगी तो उनसे वो ज्वेलरी निकलवाने की इनकी दलेरी और इनकी जीतदारी का इससे बड़ा कोई वाक़या नहीं। बहुत दुआएं और मोहब्बतें और बहुत तमन्नाएं और एक इंशाल्लाह हम लोगों ने इससे पहले भी जिमखाना में उनके फन पर उनकी शख्सियत पर बहुत बातें की हैं, बहुत दुआएं भी हैं। बहुत अल्लाह कलाम जो है वो सुनने को मिलता था और कमाल उस हवाले से इनकी शख्सियत, इनका फ़न, उसके क्या कहने हैं। मैं आपकी भरपूर तालियों में गुजारिश करूँगा मोहतरमा परवीन साहब को कि वो जाहिर इस तरह के तो हमारी घर बातें होती रहती हैं, इतनी हल्की फुल्की गुफ्तगू होती है और हमारा दौर में ऐसा लगता नहीं कि इतना फलसफा और सब कुछ जानते हैं। अच्छा ऐसा है कि इस चीज़ ने इनकी तहरीर में बहुत गहराई पैदा कर दी है। अगर नसर भी लिखती है तो उसके लिखने में वो फलसफे आ जाते हैं। एक मेरी पोती वो पढ़ती थी फिजिक्स, तो उस वो ट्यूशन पढ़ती थी, बस वो साथ लेके जाती थी। एक दिन मैंने तो पूछा कि बेटे फिजिक्स क्या होती है,
اس نے اتنا خوبصورت خطبہ کرا اس کا کہ اس نے کہا کہ دادی فزکس از دا لینگویج آف یونیورس. تو جب وہ لینگویج آف یونیورس جانتی ہے تو پھر ایک اس کے سامنے زبانی کیا ہے, اس کے سامنے بات کیا ہے, ہر چیز کی گہرائی میں اتنے آرام سے اتر جاتی ہے. لیکن اس میں سائنٹسٹ اور ایسے جیسے لوگوں جیسا وہ نہیں ہے, ایسا لگتا ہے اس بیٹھ پر جو بات کہہ رہے تھے. مہمان نوازی ہے کہ اب تک جب سے آئی ہے سب لوگوں کو دعوتیں کھلا دی ہیں, پھر ابھی تمہاری کھلانے کی باری ہی ہے. تو یہ ہر لحاظ سے اس کا جو بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں جو سائنس کے اتنی سہولت سے حل کر لیتی ہے, جیسے 2 اور 4 ہوتے اس طرح کر کے چہران کرتے ہیں. تو بس سب لوگ سب کچھ کہہ چکے ہیں. میرے کہنے کو صرف یہ رہ گئی اس کہتے کہ میری سے دوستی ہو گئی ہے اور بس ملتے رہیں انشاءاللہ اور آگے بڑھتے رہیں گے. اور کتاب آئے گی تو پھر اور باتیں ہوں گی. لفظوں کے ذریعے بھی, اپنی آواز کے جادو کے ذریعے بھی. تو بینا صاحبہ کی جو شعری حصہ ہے, جو شعری ان کی جو شعر ہیں, اشعار ہیں, وہ ہم سب نے سنے تو ہوئے ہیں, لیکن ترنم کے ساتھ ہم میرا خیال آج ہی سننے کے قابل ہوں گے. آپ سب کی بھرپور تعلیم میں جناب علی برکی صاحب. اور مجھے بہت ساری ایسی شخصیات یہ میں دیکھنا چاہتا تھا, میں سننا چاہتا تھا, برباد بھی ہو گئی. اچھا یہ جو انہوں نے کہا ہے یہ مجھے آج بھی بینا جی نے کہا آپ نے آنا ہے اور پڑھنا ہے, تو میں نے اس کی ہلکی سی دھوم بنائی اور بہت سارے اپنے لوگ ہیں اس کی میں سنائی دیتا ہوں. بلکہ آج ایک اور بھی بڑا کچھ مسئلہ واقعہ ہوا کہ جب یہ کہنے تھی کہ اتنا دل سے لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی یقین نہیں آتا. ان کا جملہ ختم ہونا تھا کہ باہر سے آواز آ گئی سونے دل. ویسے وہ بڑھ گیا. بے وفا سے وفا نبھائی, بے وفا سے وفا نبھائی تھی, زندگی کی کمائی وہ تو گرویدہ ہو گیا میرا, وہ تو گرویدہ ہو گیا میرا. میں نے بھی اس سے لگائی میں تیرے ہجر کے تصاویر میں تھی, میں تیرے ہجر کے تصاویر میں تھی. کب تیری آنکھ تک رسائی, کب تیری آنکھ تک رسائی تھی. بے وفا سے وفا نبھائی تھی, بے وفا سے وفا نبھائی تھی, بے وفا سے وفا نبھائی تھی. زندگی کی یہی کمال
اس کا جواب ہی نہیں. مجھے پچھلے برس جب اپنے فرینڈ والے گھر میں لنچ لیا جس میں آپ سب لوگوں نے پھر تو میں نے کہا بڑا اچھا گھر بنایا, کتنے پیسے لگے, ان کا زندگی کی یہی تھی. میں نے کہا چلے یہ بھی بتا دیں کہ خوشگوار زندگی کیسی گزری ان کے ساتھ. باقی کے بہت ساری اشعار ان کی نظریات انشاءاللہ آپ کو اگلی کسی تقریب میں سنیں. آپ نے تو سنانا نہیں بچا رہا تھا, وہ بڑے امید بیٹھے تھے. ایک دفعہ پڑھنی چاہیے کسی کے لفظ کٹے گی. آپ ادھر آ جائیے, آپ نے لفظ میں پڑھیے نا میرے ساتھ. ذرا ماحول لگتا ہے پرانیوں کے بیچ میں کیسے دوڑے ان کے پاس ہی آپ نے کیا لفظ کرتے ہیں آپ کو دلہ سے رشتہ ملا اور میری دیکھ کر پسند وہ بھی گو سے رشتہ بینا بے وفا سے وفا نبھائی. چلیے آپ نے اتنا اچھا پڑھا کہ پھر میں ایک اور بڑی اچھی غزل ہے جسے میں نے پہلے بھی ٹی وی کے لیے ریکارڈ کروایا تھا, آپ نے پھر بڑا اچھا تھا. چاندنی رات میں غلام تجھے دھڑکنیں دل کی میں سناؤں تجھے. چاندنی رات میں غلام تجھے دھڑکنیں دل کی میں سناؤں تجھے. تیرے پہلو میں رکھ کے دل اپنا, تیرے پہلو میں رکھ کے دل اپنا, چاند راتوں میں چاندنی رات میں غلام تجھے اور ہم بھائی سے میں ملا. کچھ کہے سوال کروں, کچھ کہے سوال کروں, اور یوں پھر سے آزما تجھے. چاندنی رات میں غلام تجھے دھڑکنیں دل کی میں سناؤں تجھے. اپنی ہستی کو بھول سکتی ہوں, اپنی ہستی کو بھول سکتی ہوں, کیسے ممکن ہے بھول جاؤں تجھے, کیسے ممکن ہے بھول جاؤں تجھے. اور بڑا خوبصورت یہ شعر ہے کہ اور لکھا ہے کہ حامد جی کے نام آپ کی خوبصورت سے کیا آنسوؤں کی تپش میں جلتی ہوں میرے پیارے
होगी तो किसमें जलती हूँ, काश इसमें कभी जला पकड़ने ताकि ताली तो बजाते आप सब सलामत रहे। बहुत शुक्रिया। अदीब भाई ने जो शगुफ्तगी भर दी है महफिल में, मेरा ख्याल है उसका हक अदा करने की एक दफा भरपूर तालियां होनी चाहिए। बेटा बटे हाँ ऐसे बिल्कुल ऐसे ही। तो अब आज की तकरीब का इख्तिताम एक खुशगवार बात है। जो भी तकरीब हम आगाज करते हैं, जितनी भी खूबसूरत हो उसका एक इख्तिताम होता है। हालांकि हम अभी इस फेज में हैं, अपनी कैफियत बयान कर रहा हूँ, मुझे महसूस हो रहा है कि वो बहुत सी जो ऐसी तकरीबें होती हैं जिसमें नसर का अंसर ज़्यादा होता है, उसमें हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द किसी तरह छुटकारा मिल जाए और ये अपने इख्तिताम को पहुँच जाए। आज की तकरीब का हुसन और मीना नंदी साहिबा की वजह से, उनके चाहने वालों की वजह से इतनी खूबसूरत तकरीब थी कि मैंने देखा कि कोई बंदा अपनी नशिस्त से उठकर नहीं गया और आखिर तक वो इन्हमाक जो तकरीब के आगाज़ में था वो अब तक वो बरकरार। और इसका क्रेडिट डेफिनेटली आज की साहिब शाम बसंत एहतराम जैसे खूबसूरत मजमूआ की खालिक मेरी मुराद मोहतरमा मीना नंदी साहिबा से है। आपकी भरपूर तारीफ में हम उनको स्टेज पर खड़ा करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले मैं रज़ा का सदर में ये पाकिस्तान उर्दू फाउंडेशन के जिन्होंने आज ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए सजाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करती कि उन्होंने इस तरह की रवायत को कायम किया। यकीनन एक इस किताब के अंदर कॉलम्स भी हैं, बयानियाँ भी हैं और मज़ामीन भी हैं। मैंने वाकई एक सवाल उठाया, इसलिए मैंने खुद से ये बात छेड़ी है कि किताब को किस तरह तरतीब दी जाके लोगों को, जैसे वो नहीं कह रहे थे वो वाकई मेरे सीनियर थे लेकिन उनके 3 बच्चे थे, ये बात का ध्यान रखिए। तो इसलिए ये हमारे सीनियर तो थे, हम उनके सीनियर थे, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वो वाकई उन्होंने सही कहा कि लोगों को आज के दौर में इन चीज़ों का नहीं पता होता, लेकिन रज़ा को बहुत पता था, इसलिए उन्होंने नाम भी लिखे। चूँकि ये वो सदारत के नाम थे, अमजद साहब जो कि रात की हमारे साथ थे, परसों भी इस तरह की तकरीबात 3-4 रोज से हो रही थी और वो भी इसी किताब से। और फरत परवीन को मैं क्रेडिट दूंगी कि जिन्होंने सबसे पहली तकरीब जिम खाना में की और सबने मेरी तमाम जो हमारी इंटेलेक्चुअल जो हमारी क्रीम है, जो लाहौर की नहीं बल्कि पाकिस्तान की, उन्होंने दिल खोल के अपने दिल की बातें की। उन बातों को भी मैं आज अगर अपनी बात में जिक्र करूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास है। लेकिन इससे पहले मैं कुछ अपने साथियों का जो यहाँ मौजूद हैं उनका जिक्र जरूर करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरा मैके और ससुराल दोनों बैठे हैं। मज़े की बात है कि मेरी इस वक्त एक ऐसी मेरा उनके साथ रिश्ता है, वो मेरी दोस्त भी हैं और मेरी जेठानी भी है और उनका नाम है मुश्किल जाना, वो बहादुर खातून। इस किताब में उनका एक मजमून भी है उनके हस्बैंड का, और यकीन माने कि उन्होंने जिस तरीके से उनकी वहाँ पे आए, वो प्रेसिडेंट थे अभी बैंक के, तो वो वहाँ पे उन्हीं का वो हमें देख के हमारे पीछे पीछे आए, मीना हम गए हम भी जाए, हम तो PhD करने गए थे भाई। और वहाँ पे फिर वो ज़ेवरात की जो आपने बातें सुनी थी, यही वो चीज़ें थी जिसकी वजह से हम समझते हैं कि हमें परदेश नहीं करना चाहिए, लेकिन वो भी बहुत अच्छा रहा। तो वो तो एक अलग बात है, वो भी हैं यहाँ पे बुशरा, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और फिर मेरे बड़े भाई जो कि मुझसे छोटे लगते हैं, फरूक भी मुझसे बड़े हैं लेकिन इजाज़त होगी, जो कि हमारे घर में हमारे इस वक्त वालिद की जगह पे हैं, जिनके साथ मुझे बहुत प्यार था, और मेरी भाभी जो कि इस वक्त मौजूद हैं विगत, और वो भी मुझे, मैं समझती हूँ जो इबादत के तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए वो आ नहीं सकती, तो ये हमारे लिए
محترم اور احترام کی جگہ فروخ چکے کسی مقدمے میں گئے ہیں اور مقدمے جیتتے رہے ہیں ان کو قبول ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آج جن ہستیوں نے یہاں پہ آ کے مجھے مان بخشا ان میں سب سے پہلے میں جس کو کریڈٹ دیتی ہوں وہ سلیم طارق صاحب ہیں. چونکہ ان کی طبیعت اتنی خراب تھی, ان کا بلڈ پریشر 5-6 دن سے بہت زیادہ تھا, تو ان جس دن سے وہ یہ تقریبات میں آ رہے ہیں تو ان کا بلڈ پریشر میں روز پوچھتی ہوں بہت لو ہو گیا. تو میں نے کہا اب آپ یہ مسلسل کریں, تو بھی مسلسل چلی جاؤں گی چند روز میں, تو آپ ان تقریبات میں آتے رہا. تو فردن میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ادھر دائیں طرف میرے ڈیڈی کے دوست قمر فیروز جو کہ کامران رسالہ بچپن میں ایک نکلتا تھا, میرے ابو کے کزن تھے, وہ لوگ مل کے نکالا کرتے تھے اور یہ ان کے ساتھی بھی تھے, تو وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں. میری خالہ جو میری دوست ہیں وہ میری بہت بہترین دوست ہیں ایشور, اور وہ میں بالکل ان کو خالہ نہیں سمجھتی, میرے باٹنی کی سبجیکٹ فیلو ہے. آئی سیلیوٹ دیم کہ ان کو واقعی یہ بات کرتی ہیں تو ان کو شاید صاحب جانتے ہیں اس بات کو کہ میں ان کے گھر میں لے کے گئی تو ان کو کیسے میں اس لیے یہ باتیں بتا رہی ہوں کہ وی آر اے کمیونٹی, وی آر فیملی, سو وی ہیو ٹو کنیکٹ ٹو ایچ ادر. سو ہمیں ایک دوسرے کی جڑیں نہیں کاٹنی, ایک دوسرے کو گرو کروانا ہے. پلیز وی ہیو ٹو ڈو دس, اور اسی طرح ہم نے رشتے استوار کرنے, اسی لیے میں نے. لیکن میں ایک اور بات کرتی چاہوں, ایک یہاں پہ شخصیت ایسی ہیں جن کا میں نام نہ لوں تو لاہور کا ہمارا ادب, میں آپ کو یقین کہتی ہوں اسپیشلی خواتین کے حوالے سے, اس کو لوگ کچھ بھی کہتے ہیں, ہم ان کو ہیرو کہتے ہیں, اور ان کا نام ہے شعیب العزیز. تو وہ اس طریقے سے سب کو سپورٹ کرتے ہیں کہ انہیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون ہے. وہ GOR کے کھانوں سے لے کے وہ ہمارے فنکشن آخر دم تک بیٹھے رہتے ہیں, اور آئی ریسپیکٹ ہم ایز مائی فرینڈ, ایز مائی بردر, ایز مائی ہیرو. اور ہیرو تو ہمارا سب لوگ ہی ہے, ہیرو تو ہمارے بے نظیر بھی ہیں, علامہ اقبال بھی ہیں, لیکن اس طرح کے لوگوں کا ہونا ہمارے معاشرے کے لیے بہت سوال ہے. یہ میں آپ کو بات کروں کیونکہ یہ لوگ بہت اور انداز میں صوفیوں کا کام کرتے ہیں, کیونکہ یہ بہت سی چیزوں میں نہیں آتے. لیکن عدیل برقی کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں, اور آج ہماری سیلیبریٹی سلما امان, یہ جو ہے یہ ہماری مطلب میں آج کی دنیا کی سیلیبریٹی ہیں, اور انہوں نے جس طرح مجھے پرسوں کہا کہ میں نے ڈسکور کیا بینا کو 1992 میں, اور یہ مجھے آ کے وہاں پہ سفر نامے کے حوالے سے کوئی واقعہ جو انہوں نے پرسوں بیان کیا وہ ہے. اور پھر میری بچپن کی دوست یہ غالباً انڈین جان لگتی ہیں, تو میں ذرا بری لگتی ہوں, تو اس لیے وہ 30 برس پہلے کی بات ہے جب ہم سرگودا میں پڑھا کرتے تھے کالج میں منزل ہے. تو یہ میری وہ دوستیں ہیں, یہ میرے سب احباب ہیں. یہاں پہ میرا ایک بہت پیارا ساتھی جس کا میں نام لیے نہیں رہ سکتی, نروان, جو وہ بہت مشکل میں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بینا جی آپ میری گرو ہیں. میں کہ بس کرو گرو, میں تو خود مصیبت میں بڑی روٹیاں پکا رہی ہوں, نہیں کر رہے تو مجھے معاف کرو. تو لیکن اس طرح کے ہمارے بہت سے ہیں, اور انہوں نے صدیقی صاحب نے اور بہت بے شمار ہمارے یہاں پہ سب احباب ہیں جنہوں نے آ کے ہمیں گریٹیٹیوڈ پے کیا. اور اسپیشل تھینکس ٹو آمنہ. شی از اے پولیٹیشین, شی از اے فزیشین, اینڈ شی از آن اے ہائی رینک ان US. ہماری جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی یا ہمارے کسی بھی اس سطح پہ کوئی اگر کانفرنس ہو جہاں پہ ہمارے دونوں کنٹریز کے میوچل انٹرسٹ ہوں, تو آمنہ مڈل کو ہم یہ شکاگو میں ہوں یا US نیو یارک میں ہوں تو ان کو ضرور مدد کیا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ اتنی اسپیچ کی آواز میں اتنی طاقت ہے. تو میں آئی ریلی سیلیوٹ آمنہ that you came all over from Karachi for this event. I really appreciate it. تو پھر بیٹا صاحب نے تو بتا دیا ان سے محبت ہے, لیکن اب میں وہ محبت کا اگر آپ نے 5 منٹ میں آپ کے اور دوں گی اور پھر میں آپ سے بتا سکتی ہوں. پہلے تو میں ایک بات ذکر کروں کہ تاریخ کس طرح بگڑتی ہے. دیکھیں ابھی نیلم نے واقعہ سلما کو سنایا تھا تاریخ بگڑ گئی. وہ خواتین نہیں تھی, وہ کالے حبشی لڑکے تھے جو گن پوائنٹ پہ پورے جیولری شاپ کو لے کے, شاپ مینس لائک پورا ڈائمنڈ کا پورا سیٹ لے کے بھاگ, یعنی ٹرے, وہاں ٹریز ہوتی ہے پوری ٹریز جس پہ وہ لے کے بھاگ گئے تھے. اور واقعی 6 لوگ ہم کھڑے تھے. جی بالکل ایگزیکٹلی, یو نو اٹ ہیپن. میں نے وہ بٹن دبایا لیکن وہ بٹن پولیس کی آنے میں دیر تھی, تو میں نے اس لیے بھاگی کہ مین ڈورز جو ہیں وہ بند ہو جائیں, کیونکہ ایسی چوریاں جو ہوتی ہیں جب آپ کے کیمرے ہوں بھی تو دے ڈونٹ گیو یو دس مچ ڈفرینس. یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہمیں خود بھی, ہمیں حکومتوں کو نہیں کہنا چاہیے, ہمیں انسانی ہمدردی کے طور پہ اور اپنے آپ کا خود بھی اتنی ہمت ہونی چاہیے عورت اور مرد میں کہ ہم اپنے کام خود کر سکیں. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ نہ رلائی کریں گے
ओबामा की हुकूमत ने इसने कुछ नहीं किया, ये नवाज शरीफ की हुकूमत है इन्होंने कुछ नहीं किया, अगर उन्होंने सड़कें बना दी। यकीन माने मैं इस दौर में ये जब ये सॉरी टू से आई शुड नॉट से क्योंकि आई रिस्पेक्ट इमरान खान अ लॉट एज अ क्रिकेटर, एज अ पॉलिटिशियन आई हैव सम ऑफ माय डिफरेंसेस, लेकिन इस दौर में एक जरूर हुआ रोलर कोस्टर में, ये जो पॉलिटिकल रोलर कोस्टर चलती है इसमें मैंने एक नज़म के लिए भी लिखा है, इसमें मैं एक बात ज़रूर करती हूँ कि मैं पीपीपी से ये क्या है मुस्लिम लीग में शामिल हो गई। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा exactly you know that we have to see some change, something new, something strange, इसलिए क्योंकि वो भी हमारे अपने और ये भी हमारे अपने। मैंने ये बिलावल को भी अमेरिका आया था, मैंने उनको कहा था ये बात, मैंने कहा था बिलावल आई एम गोइंग टू कहते हैं आप ज्वाइन करें अच्छी बात है, तो मैंने मतलब ये है कि वी हैव टू डू दीज एक्टिविटीज मोर ऑफ्टन। अब मुझे मेरी अम्मी अक्सर कहा करती हैं ये नवाज शरीफ की चेली है, मैंने कहा मैंने कभी नहीं मिली उससे, यकीन माने कोई हमने पैसे नहीं लिए, लेकिन जब मैं सड़कों पे गाड़ी चलाती हूँ तो मुझे वो बहुत याद आते हैं। एटलीस्ट शहबाज शरीफ ने सड़कें बनाई, अभी मेरा बेटा आया था, ही वाज वेरी हैप्पी टू सी ऑल दिस चीजें इन पाकिस्तान, सो मैं रिसोर्सेज को हम वापस यहाँ पर। अभी इस किताब के हवाले से मैं एक बात करती चलूँ, इस किताब का ये हालत बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी तरफ हम शायद इस तरह नहीं इस एंगल से हम नहीं देख सकते। इसमें सबसे पहली बात ये है कि इसमें इसका टाइटल अगर आप फ्रंट पे देखें तो मेरी तस्वीर है, लेकिन ये तस्वीर मैंने स्क्वीज की है। इस तस्वीर को अगर आप देखें तो इसमें ब्लैक एंड व्हाइट मैंने इंटेंशनली लगाया। इस ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब ये है कि हम भी रोशनी देखें, नथिंगनेस के अंदर आपको रोशनी मिलती है और वो रोशनी हमेशा रहती है। तो ये रोशनी जो ब्लैक एंड व्हाइट की रोशनी होती है ये चकाचौंध कलर्स में नहीं होती, ये आपको आपके अंदर की रोशनी। तो दिस इज द डॉट, दिस इज द न्यूक्लियस दैट वी हैव टू फोकस। हम जो भी काम करें हम इस दायरे में रहें, और ये मेरा वो ऑर्बिट है जिसको ऑर्बिट ऑफ लाइफ, और इस ऑर्बिट ऑफ लाइफ में अगर कोई दाखिल होता है तो वो फिर मैं उसे छोड़ती नहीं, बशर्ते कि आप उसमें दाखिल हों। ये मेरा और मेरे हर बयानिए में इसका ऑर्बिट का जिक्र